Hello friends, welcome back. Children, we have started with the topic elasticity of demand in the last lecture, and I told you about the different types of elasticities of demand. Three we have already discussed. The first one was price elasticity, the second one was income elasticity, and the third one, children, what we called it as cross elasticity. I also told you how to derive those formulas, right? So today's lecture, children, we are going to focus on the diff question, which is very important. You people have also studied in your 12th standard. It will be like a small revision. Children, the question is, they either call it as what are the different degrees of price elasticity, or we also call it as what are the different types of price elasticity of demand. Children, what basically is elasticity of demand? We know that there are these two different components that we have. The first one is called as the price of a commodity, and the other one, children, is called as the quantity demanded. So whenever we change one variable, it will automatically have an impact or a response that generates from the another variable. Supposedly, children, if we raise the price of a commodity, then automatically what happens? The quantity demanded of that particular commodity will fall down. If we lower the price of the commodity, then the quantity demanded rises. The question arises, like, by what exact quantity or what exact magnitude these changes take place? So according to the magnitude of the reaction of the quantity demanded, we divide these types of elasticity in 5 different types. Now, how do we understand, children? Let me tell you a hint how you can remember this answer. Children, whenever I change the price of a commodity, जब मैं किसी commodity का price change करूँगा, okay, तो सवाल ये आता है कि like मैं price कितने से change कर रहा हूँ. अगर मैंने price को बच्चों लोग इतने quantity से change किया और फिर quantity demanded बच्चों लोग exactly उतने ही quantity से अगर change हुआ है, then we will term that down, children, as unitary elastic demand. क्या बुलाएंगे उसको? Unitary elastic demand. Children, if the price is changing by this magnitude or quantity demanded, children, is increasing by a larger quantity, मतलब आपने प्राइस को इतना सा ही बदला है जबकि डिमांड बच्चों इतना बदल गया है, तो that will be actually called as relatively elastic demand. फिर अगर आप प्राइस को इतने से ही चेंज करोगे, इतने से, और क्वांटिटी डिमांड बच्चों उससे भी कम चेंज होता है, then we can call that as relatively inelastic demand. बच्चों कभी कभी ऐसे भी होता है कि अगर आपने प्राइस को इतना चेंज किया है और क्वांटिटी डिमांडेड does not undergo any change. In that particular way, children, we will assume that that will be known as perfectly inelastic demand. क्या बोलेंगे उसको? Perfectly inelastic demand. अच्छा, then children, suppose if I say like this कि अगर आपने प्राइस को बदला ही नहीं है फिर भी क्वांटिटी डिमांडेड बच्चों लोग इनफाइनाइटली चेंज हो जाता है, क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस इनफाइनाइटली, then children that will be known as what's referred to, children, as perfectly elastic demand. अभी यहाँ पे बच्चों लोग we need to understand this कि कुछ words अगर हम लोग यहाँ पे माइंड में रखते हैं तो you will understand that we have to use certain words. The first word, children, which will be actually known as equal, या फिर we can also call it as exactly proportionate करके, क्या बोलने का? Equal या फिर exactly proportionate. अच्छा, it means, children, कि we need to understand that whenever the price of the commodity will change and the quantity demanded changes exactly, or it's also called a proportionately, children, then we need to understand that the degree of price elasticity is called as exactly proportional or unitary elastic. अच्छा, तो ऐसे आपने प्राइस को बदला, डिमांड exactly उतने से ही बदल गया तो यूनिटरी इलास्टिक. आपने प्राइस को बदला, डिमांड प्राइस से भी ज्यादा चेंज हो गया बच्चों, तो बोलने का रिलेटिवली इलास्टिक. अगर आपने प्राइस को बदला है लेकिन डिमांड बच्चों लोग प्राइस से थोड़ा कम चेंज हो गया है, then we can call that as relatively inelastic.
बच्चों आपने प्राइस को चेंज किया लेकिन फिर डिमांड चेंज ही नहीं हुआ है. वी कैन रिफर टू दैट चिल्ड्रन एज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. And when there is no change in price and then also the quantity demanded children undergoes a lot of change in that particular way, children, we can refer to it as what's referred to as perfectly elastic. Whenever we take a rubber ball in our hands, children, जब आप उसको ग्राउंड पे ड्रॉप करते हो तो आप इमेजिन करना इसे, आपने बच्चों ए हाइट से बॉल नीचे ड्रॉप किया है और फिर वो बाउंस होकर बॉल ने बच्चों एग्जैक्टली उधर तक ही आता है, तो उसको बोलने का एग्जैक्टली प्रोपोर्शनेट, राइट. अच्छा, अगर आपने एक बॉल ड्रॉप कर दिया बच्चों यहां से और वो बाउंस होके ऊपर चला गया बच्चों, तो वी कैन कॉल दैट एज रिलेटिवली इलास्टिक. इफ यू ड्रॉप अ बॉल फ्रॉम दिस हाइट एंड इफ इट बाउंसेस बैक चिल्ड्रन, लेकिन वो थोड़ा सा नीचे ही रहता है, जब हार्ड बॉल आएगा तो इट विल बी कॉल्ड एज रिलेटिवली इनइलास्टिक. अच्छा, एक टेनिस बॉल आता है बच्चों, अच्छा वो हार्ड वाला, अगर आप उसको ड्रॉप करते हो फिर वो ऊपर आता ही नहीं है, तो आप उसको क्या बोलोगे, नो चेंज. एंड यू मस्ट ऑब्जर्व समथिंग लाइक नो क्रेजी बॉल वगैरह आता है, अगर उसको बाउंस करोगे तो चलो कहां पे चला जाता है पता नहीं चलता, तो दैट विल बी कॉल्ड एज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, ये सबके लिए एक सेंटेंस बनाते हैं. अभी हम लोग what are we going to do, we are going to frame a sentence for all these different types of elasticities of demand, children. अच्छा, सेंटेंस क्या है जरा रिफर करते हैं यहाँ पे. इट विल बी लाइक दिस चिल्ड्रन, व्हेन द प्राइस, मतलब जब भी प्राइस चेंज होगा, व्हेन अ चेंज इन प्राइस लीड्स टू, क्या हमने कहा, व्हेन अ चेंज इन प्राइस, ये देखो बच्चों यहाँ पे सेंटेंस है, व्हेन अ चेंज इन प्राइस, क्या करेगा बच्चों, चेंज इन प्राइस लीड्स टू. अच्छा, these words are very important, children. Exactly proportionate change in quantity demanded. तो आप देखोगे ये सबके सब sentences में मैंने you will find कि like sentence मेरा सेम ही है, when a change in price leads to, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों लोग, more than proportionate. क्या लिखना है, more than proportionate करके. अच्छा, तो suppose children if you refer to this, ये मैंने अंडरलाइन किया बच्चों यहाँ पे, मोर देन प्रोपोर्शनेट. अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेस देन प्रोपोर्शनेट. क्या लिखा है, लेस देन प्रोपोर्शनेट. तो आई एम जस्ट अंडरलाइनिंग दिस चिल्ड्रन, लेस देन प्रोपोर्शनेट. यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, इट्स लाइक नो चेंज, और हियर चिल्ड्रन इज मेंशन्ड एज इनफाइनाइट चेंज. ओके, नाउ हाउ सिंपल इट इज, चिल्ड्रन. अगर आप ऐसे बोलते हो कि when a change in price leads to exactly proportionate change in quantity demanded, then that is called a unitary elastic demand. जब आप बोलते हो कि like when a change in price leads to more than proportionate change in quantity demanded, then it will be known as relatively elastic demand. अच्छा, जब आप बोलोगे कि like when a change in price leads to less than proportionate change in quantity demanded, तो क्या बोलोगे आप, relatively inelastic demand. अच्छा, when a change in price brings about no change in quantity demanded, तो क्या बन गया, perfectly inelastic demand. और when there is no change in price or a slight change in price brings about infinite change in quantity demanded, then that will be referred to as perfectly elastic demand, right? तो पहले में क्या, exactly proportional, दूसरे में क्या, more than proportional, third one is less than proportional, fourth one is no change, और fifth one आता है infinite change. तो चलो हम लोग यहाँ पे सिर्फ क्या कर रहे हैं, आपने एक बात नोटिस की है क्या, we just comparing things, children, कि डिमांड कितने से चेंज होता है और price is changing by how much. So you can just use these symbols here. As you can see, children, percentage change in quantity demanded, क्या लिखा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, राइट. अच्छा, एंड आफ्टर दैट चिल्ड्रन व्हाट आर वी मेंशनिंग हियर, परसेंटेज चेंज इन प्राइस. सो ये हर एक इक्वेशन में आपको बच्चों लोग सेम चीज दिखाई देगी, दिस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस. अच्छा, अभी इन दोनों के बीच में आपको एक सिंबल यूज करना है बच्चों लोग. पहले में हमने क्या बोला है, एग्जैक्टली प्रोपोर्शनेट, तो आपने यहाँ पे इक्वल टू साइन यूज किया है. चिल्ड्रन, इन द सेकेंड इंस्टेंस द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विल बी ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. मतलब यहाँ पे डिमांड बच्चों लोग ज्यादा बदलेगा.
यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. Here percentage change in quantity demanded is exactly equal to 0. Children, 0 is for no change in quantity demanded, and percentage change in quantity demanded will be equal to infinite. So infinite, this is no change, this is less than proportionate, more than proportionate, and exactly proportionate. Achha. Now can you just quote a numerical example for this, children? Suppose अगर किसी commodity का price 10% से reduce हुआ है और उस commodity का demand market में exactly 10% से बढ़ गया, तो percentage change in quantity demanded is how much? 10. And what is the percentage change in price? 10. So your answer is exactly equal to 1. So we say that EP equals to 1. अच्छा, सेकेंड वाले सिचुएशन में चलो आपका प्राइस कितने से फॉल होगा? 10%. But the quantity demanded will rise by 15%. So यहाँ पे क्या होता है? 15% divided by 10%. So your answer is 1.5. Because the answer is 1.5, children, we refer to it as elasticity of price is greater than 1. यहाँ पे चलो the price is going to fall by how much? 10%. Demand will rise by how much? 5%. So चलो यहाँ पे 5 upon 10. Your answer is 0.5. 0.5 means, children, elasticity of price is less than 1. In the next instance, children, यहाँ पे price is going to fall by 10%, but demand will rise by 0%. So 0 upon 10. So your elasticity का value will be EP equals to 0. अच्छा, फिर when the price is going to fall by 0% and quantity demanded has risen by 100%, so 100 upon 0. आंसर लिखते हो बच्चों लोग आप इनफाइनाइट का सिंबल यूज करोगे. कौन सा सिंबल? इनफाइनाइट. तो ये न्यूमेरिकल एग्जांपल्स हो गए. फिर मैंने आपको यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, चिल्ड्रन, आल्सो आई हैव नोटेड इट डाउन. नाउ एज यूजुअल, चिल्ड्रन, इन इकोनॉमिक्स एनी पर्टिकुलर आंसर वुड बी इनकम्प्लीट if we don't have a diagram for that. तो चलो फर्स्ट वाले में when you construct this diagram, जब आप डायग्राम कंस्ट्रक्ट करोगे तो चिल्ड्रन दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस. x एक्सिस पे व्हाट हैव वी कोटेड, चिल्ड्रन? क्वांटिटी. y एक्सिस पे चलो हमने प्राइस दिखाया हुआ है. अच्छा, इनिशियल प्राइस हमने कितना लिया है? P1. जब प्राइस P1 है तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना है? चलो Q1. When the price falls from P1 to P, then quantity demanded will rise from Q1 to Q. And can you just observe this, children? The change that is taking place in the price and the change that is you are able to observe in quantity demanded, they are exactly same. It means, children, like this arrow will actually come downwards. Key, whenever there is a fall in price, then quantity demanded rises by exactly same proportion. तो दोनों का गैप आपको इक्वल दिखाना है. ठीक है. सो इन द अबव डायग्राम ये P1 P का जो डिस्टेंस है बच्चों वो एग्जैक्टली Q1 से Q तक को मैच करता है. ठीक है. ये सेकेंड वाले डायग्राम में, चिल्ड्रन, आप जो डायग्राम बनाओगे, द डायग्राम दैट आई वांट टू प्रिपेयर, दिस इज कॉल्ड एज अ फ्लैटर कर्व. कौन सा कर्व है? फ्लैट कर्व है. अच्छा, इनिशियली आप मानोगे बच्चों लोग की मार्केट का प्राइस जो है, व्हाट इज दैट? मार्केट प्राइस, इट इज P1. ओके. और इसको अगर आप यहाँ पे स्ट्रेच करते हो, चिल्ड्रन, देन यू गेट दी क्वांटिटी डिमांडेड. क्वांटिटी डिमांडेड हियर, चिल्ड्रन, इज गोइंग टू बी हाउ मच? क्वांटिटी डिमांडेड विल बी Q1. कौन सा क्वांटिटी डिमांडेड है? Q1. अच्छा, अभी Q1 का एक क्वांटिटी डिमांडेड. अच्छा, व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज गोइंग टू फॉल, ये देखो, ये रहेगा आपका नया प्राइस. सो द न्यू प्राइस इधर आ गया और उसकी वजह से बच्चों क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गया है. सो न्यू क्वांटिटी डिमांडेड इज गोइंग टू बी हियर. अच्छा, सो कैन यू जस्ट ऑब्जर्व, चिल्ड्रन, डायग्राम में आपको एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं मैं आपको. व्हाट एग्जैक्टली इज दैट ऑब्जर्वेशन? दैट जब ये प्राइस कम हुआ है बच्चों, ये वाला गैप, ये तो ये क्वांटिटी डिमांडेड क्या हुआ है? बढ़ गया है. बट कैन यू जस्ट ऑब्जर्व, चिल्ड्रन, क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा बढ़ गया है. तो इसको हम लोग मोर देन प्रोपोर्शनेट बोलते हैं. अच्छा, यहाँ पे भी सेम, चिल्ड्रन. अगेन, चिल्ड्रन, वी हैव गॉट दी एक्स एक्सिस. अच्छा, उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा आपका ये वाई एक्सिस.
अच्छा, फिर आप इनिशियल प्राइस लेते हो, सो दिस इज योर इनिशियल प्राइस। अच्छा, एंड चिल्ड्रन दिस विल बी योर इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड, इधर आता है आपका। ओके, सो आफ्टर दैट आप जैसे ही प्राइस को क्या करोगे, कम कराते हो, सो योर न्यू प्राइस इज गोइंग टू बी हियर चिल्ड्रन, ये रहेगा आपका नया प्राइस। अच्छा, और फिर उसकी वजह से आपको एक नया क्वांटिटी डिमांडेड भी मिलने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी योर न्यू क्वांटिटी डिमांडेड। अच्छा, अगर आप ये दोनों को भी ज्वाइन करोगे चिल्ड्रन, तो आपको कुछ एक ऐसा कर्व मिलेगा, इसको हम लोग स्टीपर कर्व बोलते हैं। मतलब क्या हो गया, इट्स क्वाइट सिंपल चिल्ड्रन, दैट जब आपका प्राइस इतने से रिड्यूस हुआ है तो आपको क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गया, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड उतना नहीं बढ़ा जितना कि प्राइस कम हो गया है। सो ये क्या था बच्चों, एग्जैक्टली इक्वल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोर देन इक्वल करके बोला जाता है, इसको क्या बोलने का, लेस देन इक्वल। अच्छा, इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम चिल्ड्रन, if we analyze for the x-axis and then children we over the y-axis, right? अच्छा, उसके बाद में फर्स्ट वाला जो प्राइस रहेगा, अगर आप उसको अज्यूम करते हो यहाँ पे, और उसके बाद में चिल्ड्रन ये नया वाला प्राइस रहेगा, लेकिन दोनों भी इंस्टेंसेस में आप ऑब्जर्व करोगे बच्चों कि लाइक क्वांटिटी डिमांडेड बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट है, दैट मींस देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्या बोल सकते हैं, देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, और ये लास्ट वाला जो डायग्राम है उसमें आप देख सकते हो, अगेन चिल्ड्रन वी हैव गॉट द एक्स एक्सिस, अच्छा फिर उसके बाद में ये अपना वर्टिकल आएगा y एक्सिस। अच्छा, इट मींस कि बच्चों लोग ये आपका प्राइस है, उस प्राइस पे इनिशियली आपका क्वांटिटी डिमांडेड कितना रहेगा, तो दिस इज योर इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड। फिर आपने प्राइस को चेंज नहीं किया, फिर भी क्वांटिटी डिमांडेड इधर आ गया, आपने प्राइस को चेंज भी नहीं किया, फिर भी आपका क्वांटिटी डिमांडेड इधर चला गया। मतलब प्राइस को बिना बदले आपका डिमांड या तो इंक्रीज भी हो सकता है बच्चों इनफाइनाइटली, या फिर वो डिक्रीज भी हो सकता है इनफाइनाइटली, राइट। सो अगर आप एक कर्व्स के शेप्स की बात करोगे चिल्ड्रन, तो द फर्स्ट वन एज यू नो, इसको हम लोग बुलाते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मतलब चलो इसके नीचे का जो गैप आता है ये ना ही जनरल होता है, चलो ये ना ही फ्लैट होता है, इट्स एग्जैक्टली 45 डिग्रीज। इसको चलो आप क्या नाम दोगे, दिस इज कॉल्ड एज अ फ्लैटर कर्व। फिर इसको बोलने का आता है स्टीपर कर्व। अच्छा, इसको तो हम लोग या तो यू कैन कॉल इट अ वर्टिकल या फिर पैरेलल टू वाई एक्सिस, और ये जो है चलो इसको हम लोग रिफर करते हैं इट्स अ हॉरिजॉन्टल कर्व या फिर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, राइट। सो चिल्ड्रन, दिस इज द आंसर दैट वी हैव now, which is basically referred to as the different degrees of price elasticity of demand. क्या बोलते हैं इसको, the different degrees of price elasticity of demand. Children, when we frame out this particular answer, जब ये आंसर हम लोग तैयार करते हैं, तो we need to understand one thing, that कि children, we will actually able to differentiate on basic grounds. अगर आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो टेबल्स के जरिए बनाने की जरूरत नहीं है, यू कैन एक्चुअली मेक इट विद द हेल्प ऑफ व्हाट्स नोन एज लाइक एक के नीचे एक आप अटेम्प्ट कर सकते हो। पहला तो सेंटेंस आता है चलो, उसके बाद में आप ये ग्रेटर देन लेस देन का सिंबल्स यूज करोगे, देन यू कैन जस्ट कोट अ न्यूमेरिकल एग्जांपल, 10%, 10%, फिर 10 और 15, 10 और 5, 10 और 0, 0 और 10 या फिर 100। आफ्टर दैट चिल्ड्रन, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो सर्कल्स में, दिस इज कॉल्ड एज द कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा, आफ्टर दैट वी आल्सो कम अक्रॉस दिस डायग्राम्स, ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दिस फ्लैटर स्लोप या फिर जेंटल स्लोप, दिस इज कॉल्ड अ स्टीप स्लोप, वर्टिकल पैरेलल टू व्हिच एक्सिस, वाई एक्सिस, दिस हॉरिजॉन्टल एंड व्हिच इज पैरेलल टू व्हिच एक्सिस, एक्स एक्सिस। ठीक है, और फिर आप यहाँ पे बताओगे कि ये गैप, दिस गैप इज एग्जैक्टली इक्वल टू दिस गैप, दिस गैप चिल्ड्रन इज ग्रेटर देन दिस गैप इज लेस देन दिस गैप, this is equal to 0 and this is equal to infinite. So children, as I told you, like this answer we already analyzed in our 12th standard also. So this is something that you already have studied. So nothing of difficult sort we can say. Okay? But then also if you have any doubts, you can get it clarified, children. अब इसके आगे हम लोग सीखने वाले हैं what are the different methods of measuring the price elasticity of demand. तो क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है तो मैं आपको ऐसे कंपैरेटिवली एक एक लेक्चर में पढ़ाऊंगा,
ताकि हम लोग फिर आगे के डिफिकल्ट टॉपिक्स की तरफ जा सकते हैं. So that's all for today. Thank you very much. Bye everyone. See you in the next lecture.